بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ سوہنی میری چھوٹی بہن تھی۔ وہ نام کی ہی نہیں بلکہ شکل و صورت کی بھی بہت حسین تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھیں۔ ہم بہن بھائیوں میں وہ واحد تھی جس کی آنکھیں کالی تھیں، مگر اس کے ممتاز ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ اس کے گلابی گالوں پر ایک خوبصورت کالا ننھا سا تل تھا۔ میں کبھی کبھی اسے پیار سے قاتل کہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی آج تک جس نے بھی اس کی ایک جھلک دیکھی تھی وہ سوہنی کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کئیوں نے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی، مگر باپ اور بھائیوں کے مضبوط حصار نے سوہنی کو زمانے بھر سے بچا کر رکھا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ جائے، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائے تو زندگی کا ہر میدان آسان ہو جائے گا، اور اسی مقصد کے لیے وہ گاؤں کا گھر چھوڑ کر ہمیں شہر لے کر آئے تھے۔ ہم شہر آ تو گئے تھے، مگر پوش علاقے میں گھر لینا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ 3 مرلے کے مکان کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی تھی۔ بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بنگلہ خرید سکیں، نہ ہی اتنے پیسے کہ کرائے پر مکان لے کر 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شہر کے اندر گزار سکیں۔ لہٰذا ایک دوست کے کہنے پر والد صاحب نے اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر مارکلہ ہلز کے دامن میں واقع پیر سہاوا میں 10 مرلے پر واقع ایک خوبصورت مکان لے لیا۔ یہ مکان ہمارے لیے خوابوں کا مرکز تھا، کیونکہ گاؤں والے گھر سے یہ کئی درجے بہتر تھا۔ 5 کمروں، 2 واش روم اور ایک چھوٹے سے باغ پر مشتمل یہ گھر ہمارے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا۔ تقریباً 1 ہفتے میں ہی ہم نے گھر کو بہترین فرنیچر اور زندگی کی ضروری سہولیات سے مزین کر لیا تھا۔ گاؤں والے گھر میں بابا نے ٹی وی نہیں لایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت سوہنی 10ویں کے پیپر دے رہی تھی۔ بابا کا خیال تھا کہ اس کے بعد ٹی وی لائیں گے تاکہ بچوں کا دھیان پڑھائی سے نہ ہٹے۔ اب میں BA کے پیپر دے چکی تھی اور سوہنی نے 10ویں کے پیپر دیے تھے۔ ہم دونوں گھر میں فارغ ہوتے تھے۔ امی سے ضد کر کے ہم نے گھر میں ٹی وی بھی لگوا لیا۔ ٹی وی دیکھنے کا سب سے زیادہ شوق مجھے تھا، اور کچھ میرا چھوٹی بہن پر رعب ہی اتنا تھا کہ وہ زیادہ ضد نہیں کرتی تھی۔ رات کے 10 بجے تقریباً سبھی سو جاتے اور میں ٹی وی دیکھنے میں مگن ہوتی۔ بابا اکثر گھر پر نہ ہوتے، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے اس شوق کی وجہ سے میں اور سوہنی، جو پہلے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اب سوہنی الگ کمرے میں سونے لگی، کیونکہ میں رات گئے تک ٹی وی دیکھتی رہتی اور پھر صبح دن چڑھے اٹھتی تھی۔ یوں میں اور سوہنی ایک دوسرے سے بمشکل ہی بات کر پاتے۔ جب وہ سوتی میں جاگ رہی ہوتی، اور جب وہ جاگتی میں سو رہی ہوتی۔ اس دوری کی وجہ سے مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ سوہنی کتنی گمسم رہتی ہے۔ وہ نہ کسی سے زیادہ بات چیت کرتی اور اکثر ڈری سہمی ہی رہتی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی وہ مجھے بتاتی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ بات مجھے بتا ہی نہ پاتی۔ سوہنی کی صحت اس گھر میں آنے کے بعد دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، سب گھر والے سو چکے تھے، پورے گھر کی لائٹیں بند تھیں، جبکہ میرے کمرے کی لائٹ آن تھی اور میں ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ میری محویت میں مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میرے کمرے کی لائٹ کسی نے آف کر دی۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں گھبرا گئی، کیونکہ اگر بجلی گئی تھی تو پھر میرے کمرے کا ٹی وی بند کیوں نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید آواز ٹی وی سے آ رہی ہے، کیونکہ ٹی وی میں بھی میں ایک ایکشن سے بھرپور فلم دیکھ رہی تھی۔ اسی خیال کے تحت میں نے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ والیوم کم کرنے کے باوجود وہ آوازیں بددستور آتی رہیں۔ ٹی وی کی ہلکی ہلکی روشنی میں اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کرنا چاہی، مگر میرا تو دل دھڑکنا بھول ہی گیا جب وہ آوازیں سوہنی کے کمرے کے قریب سے آنے لگیں۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔
हजार तरह के अंदेशे मेरे जहन में मंडलाने लगे। आवाज़ लम्हा बलम्हा करीब होती जा रही थी। यूं लगता था कोई आपस में गुत्थम गुत्था है। मैं दीवार से लगकर खौफसदा खड़ी थी। मुबादा घर में चोर डाकू आ गए थे, लेकिन अगर चोर डाकू होते तो वो ज़रूर मेरे कमरे की जानिब भी आते, क्योंकि मेरे कमरे की लाइट ही रोशन थी। काफ़ी देर ये आवाज़ें आती रहीं और मैं दिल थाम के दीवार के साथ खड़ी रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गईं तो मैंने सुख का सांस लिया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि अगर चोर हमारे घर से सब कुछ लूट कर ले भी गए हों तो शुक्र है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा था। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने टीवी भी ऑफ कर दिया था। अब माहौल और भी ज़्यादा दहशतनाक हो गया था। थोड़ी ही देर में बाहर तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और बिजली की कड़कदार आवाज़ें मुझे पहले से भी ज़्यादा खौफज़दा करने लगीं। वो रात कितनी खौफनाक थी मैं बता नहीं सकती। मैं आंखें बंद किए आयतुल कुर्सी का विद कर रही थी। खिड़कियों के पर्दे भी मैंने गिरा दिए थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब बिजली चमकती तो पूरा कमरा आसमानी रोशनी में नहा जाता। शायद ये खौफ की वजह से हुआ था या रात के खाने में मटन खाने की वजह से, मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे शदीद प्यास महसूस हुई। पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि इस अंधेरे में मैं किचन तक कैसे जाऊंगी, मगर फिर हिम्मत करके उठना पड़ा, क्योंकि प्यास इस कदर बढ़ गई थी कि लगता था गला कट जाएगा। थोड़ी हिम्मत करके मैं उठ खड़ी हुई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बारिश उस वक्त भी ज़ोरों से जारी थी और बिजली कड़क रही थी। किचन की तरफ जाने वाली राहदारी में ही सोहनी का कमरा था। मैं किचन में गई, पानी पिया और वापस अपने कमरे में आने के लिए मुड़ी तो ख्याल आया कि क्यों न मैं सोहनी के कमरे में ही सो जाऊं, क्योंकि अपने कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। राहदारी बारिश के पानी से भीग चुकी थी, जो दीवार में लगी जाली से मुसलसल अंदर आ रहा था। सोहनी के दरवाजे के पास पहुंची तो उसका कमरा बंद था। मैंने थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब न मिलने पर मैंने खिड़की से अंदर झांका, जो अभी तक खुली हुई थी। जिस लम्हे मैंने खिड़की से अंदर झांका, उसी लम्हे बारिश एक बार फिर जोर से चमकी और एक लम्हे के लिए सोहनी का कमरा मुझे साफ दिखाई दिया। मगर जो मंजर मैंने सोहनी के कमरे में देखा वो आज तक भुला नहीं सकती। सोहनी कमरे में बेसुध सोई पड़ी थी, जबकि उसकी दोनों तरफ बड़े बड़े दो काले नाग बैठे हुए थे। एक नाग उसकी दाईं तरफ था, जबकि दूसरा बाईं तरफ। इन दोनों नागों के बीच में मेरी बहन सोई हुई थी। खुदा न ख्वास्ता अगर वो उसे नुकसान पहुंचा देते तो मैं अपनी प्यारी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो जाती। मेरे दिल में डर और खौफ के साथ साथ अब दुख ने भी जगह बना ली थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दीवार से लगी वहीं खड़ी थी। मैं अंदर जाती भी तो कैसे? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं सोहनी को जगा पाती। उन नागों का मुकाबला मैं कैसे कर पाती? मैंने ज़ारो कत्तार रोना शुरू कर दिया और अम्मी के कमरे की तरफ भागी। अम्मी जल्दी उठें, गज़ब हो गया है, खुदा के लिए सोहनी के कमरे में चलें। मैं मुसलसल अम्मी के कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी। अम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं भाई के कमरे में चली गई, जो खुला ही था। मैंने भाई के कमरे की लाइट ऑन की और उसे बड़ी मुश्किल से जगाया। नींद से उठाए जाने पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था मैंने शायद कोई डरावनी फिल्म देख ली है और अब खौफ के मारे उसके पास आ गई हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। जब मैंने भाई को सारी हकीकत बताई तो वो भी परेशान हो गया। हम दोनों ही राहदारी में आ गए और अम्मी को साथ लिए बगैर ही सोहनी के कमरे की तरफ बढ़ गए। हमने सोहनी का दरवाज़ा खटखटाया, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। दरवाजे के ऊपर रोशनदान था, जो कि खुला ही हुआ था। भाई ने मुझे पकड़कर ऊपर किया तो मैंने रोशनदान से हाथ अंदर करके कमरे की कुंडी खोल ली। हम जल्दी से कमरे में दाखिल हुए और कमरे की रोशनी ऑन की, मगर सोहनी कमरे में मज़े से सो रही थी। आसपास नाग तो क्या, कोई मच्छर भी नहीं था। ये देखकर भाई गजबनाक आंखों से मुझे देखने लगा। ये न कहना शहरीन कि तुमने मुझसे इस वक्त मजाक किया है। उसके बिखरे हुए तेवर देखकर तो मैं डर गई। भाई मेरा यकीन करो, जब मैं यहाँ आई थी तो मोटे मोटे नाग सोहनी के पट पर थे। मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा था।
तुम मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। आखिर ऐसा करके मुझे क्या मिलना था मेरे भाई? मगर भाई ने मेरी बात का यकीन न किया और गुस्से से कमरे से निकल गया। मैंने कमरे को कुंडी लगाई और सोहनी के पास ही आकर सो गई। मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी का विद कर रही थी और उसे फूंके जा रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह हमारी आंख खुली तो मौसम खुशगवार था। तकरीबन दिन के 11 बजे सोहनी ने मुझे बताया कि अम्मी बुला रही हैं। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अम्मी के बुलाने की क्या वजह है। अम्मी के पास उनका लाडला बेटा भी बैठा था। मुझे देखते ही बोली, तुम पर टीवी देखने का बहुत असर हो गया है ना? कल से टीवी तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगा या फिर तुम उस कमरे में नहीं सोगी। भला ये कोई तरीका होता है कि रात देर तक तुम टीवी देखती रहो और सुबह के 10-11 बजे उठो? अगले घर में भी जाना है, क्या वहाँ भी यही हरकतें करोगी? अम्मी ने तो आते ही मेरी क्लास ले ली। यकीनन भाई ने उन्हें मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ाई थी। मैंने भाई को मायने खेज निगाहों से देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। तो गोया अब मुझसे ये टीवी छीनने का भी इरादा कर चुके थे। मगर मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। लड़ झगड़ कर मैंने अम्मी को मनवा ही लिया। अम्मी बच्चों पर ज्यादा सख्ती की काहिल नहीं थी। वो तो बस मेरे भाई के भड़काने में आ गई थी। जब मैंने मनाया तो राजी हो गई कि टीवी तुम्हारे कमरे में ही रहेगा। कल वाले वाक़े का जिक्र करने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि कोई मुझ पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर देती तो यही समझते कि टीवी की वजह से मेरे जहन पर असर हो गया है। शायद मैं उल्टी सीधी बातें करने लगी हूँ, मगर जो मैंने देखा था वो मैं ही जानती थी। एक बात मैंने नोट की थी कि जब हम लड़ झगड़ रहे थे, सोहनी हमसे बिल्कुल बेखबर शीशे को तके जा रही थी और ये बात मैं तकरीबन 1 हफ्ते से नोट कर रही थी। वो बार बार खुद को शीशे में संवारती ही रहती। यूँ लगता था जैसे वो किसी को अपना दिल दे चुकी हो और अपने आप को संवारना चाहती हो, खुद को उसकी नज़रों में अच्छा दिखाना चाहती हो। मगर मैं अपनी बहन को जानती थी, वो किसी को पसंद नहीं करती थी। ना ही उसके पास मोबाइल था और ना आस पड़ोस में कोई ऐसा घर था जिसमें उसका कोई हम उम्र लड़का रहता हो। तो फिर सोहनी में आने वाली ये अजीब व गरीब तब्दीली मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मगर मैं क्या कहती, मैं तो खुद मेकअप और फैशन की दिलदादा थी। अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो अम्मी और भाई मेरी ही क्लास लेते। खुद तो मॉडल बनी फिरती हो, अपनी बहन को शीशा भी नहीं देखने दोगी? यही उनका मुतवक्किर जवाब था। लिहाजा मैं मसलहत के तहत खामोश रही। अगली रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रात को टीवी देखने की बजाय अपनी बहन सोहनी से बातें करूंगी और रात को उसी के कमरे में सोऊंगी। एक तो मुझे डर नहीं लगेगा और दूसरा मुझे सोहनी की तरफ से इत्मीनान रहेगा। अगले दिन मैंने ऐसा ही किया। रात के 10 बजे हम खाना वगैरह खाकर सोने की नीयत से अपने कमरे में आ गए। आज सोहनी हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसकी तारीफ की तो वो मुझे अजीब अंदाज से घूरने लगी। मुझे उसका घूरना अजीब लगा। वैसे भी वो अब बात कम और देखती ज़्यादा थी। खैर तकरीबन 11 बजे के करीब वो सो गई और मेरी भी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। बारिश हो जाने की वजह से हमने पंखा ऑन नहीं किया था। वैसे भी मौसम में इतनी खुनकी थी कि गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि ये जुलाई का महीना था। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी टांग पर कोई चीज़ सरसरा रही है। मेरी तो जान निकल गई। उठने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और ना ही हाथ लगाकर देखने की कि ये क्या चीज़ है। मैंने सोहनी को ज़ोर से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर ये जानकर तो मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। जो ही मैंने सोहनी को हाथ लगाया, मुझे लगा उसको सर से पांव तक किसी नाग ने लपेट रखा है। हाथ लगाते ही मुझे खुरदुरी सी जिल्द महसूस हुई, जो यकीनन सांप या नाग ही की हो सकती थी। सोहनी के पास से आने वाली साई साई की आवाज़ों ने इस बात को साबित कर दिया था कि यहाँ कोई नाग मौजूद है, और वो भी मेरी बहन के इस कदर करीब। उफ खुदाया, बता नहीं सकती मेरा दिल किस कदर जोर से धड़क रहा था। मैं बिना कोई आवाज़ किए सोहनी के पास से उठी और कमरे से बाहर निकल गई।
मेरा इरादा अम्मी को बुलाकर लाने का था। इस बार मैंने कोई शोर शराबा नहीं किया और ना ही कोई चीख मारी, शायद इसलिए कि आवाज़ मेरे हलक में फंस कर रह गई थी। मैं राहदारी से चलती हुई अम्मी के कमरे तक आ गई। खिलाफे मामूल अम्मी जाग रही थी और चाय नमाज पर बैठी विर्द कर रही थी। मैं उनके करीब गई और सरगोशी वाले अंदाज में उनको सारी हकीकत बता दी। अम्मी ने मेरी बात सुनी और बिना कुछ कहे मेरे साथ हो ली। उन्होंने मुझे बाहर रुकने का ही कहा और खुद सोहनी के कमरे में चली गईं। अभी अम्मी को सोहनी के कमरे में गए चंद लम्हे ही हुए थे कि कमरे से सांपों के फुनकारने की आवाज़ें आने लगीं, साथ ही साथ किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज़। ऐसा लगता था कोई आपस में गुत्थम गुत्था है। मेरा दिल तो मारे खौफ के धड़कना भूल ही गया था। मेरी अम्मी सोमो सलात की पाबंद थीं। मैंने उन्हें कभी इस लहजे में बोलते नहीं देखा था। वो गरजदार आवाज़ में किसी से मुखातिब थीं। मैं कहती हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं भी कमरे में गई और जल्दी से ट्यूबलाइट ऑन कर ली। कमरा रोशन होते ही मैंने एक अजीब मंजर देखा। सोहनी बाल बखेरे बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं, जबकि वो काले नाग जो मैंने पहली रात सोहनी के कमरे में देखे थे, एक सोहनी की दाईं जानिब और दूसरा उसकी बाएं जानिब बैठा हुआ था। मगर मेरी अम्मी बिला खौफो खतर सोहनी के सामने उसके रूबरू बैठी थी। सोहनी कुछ भी बोल नहीं रही थी, मगर वो सांप एक दूसरे को यूं देख रहे थे जैसे एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हों। अम्मी के हाथ में तस्बीह के दाने मुसलसल एक दूसरे पर गिर रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थीं। मेरे कमरे में आने की उनको खबर हो चुकी थी। साइड टेबल पर पानी का जग पड़ा था। उन्होंने इशारे से मुझे पानी मांगा। मैंने गिलास में पानी उंडेला और अम्मी को थमा दिया। वो जो कुछ पढ़ रही थी उन्होंने पानी पर फूंका और सोने के सर पर डाल दिया। ऐसा करते ही वो दोनों सांप यकलख्त गायब हो गए और सोने की सुर्ख अंगारा होती आंखों के साथ वो गरजदार आवाज में बोली, तुम जो कुछ कर लो बुढ़िया, मैं इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके चेहरे पर जो दिल मौजूद है ये सिर्फ हमारे खानदान की अलामत है। ये मेरी मंगेतर है, ना ही मैं इसे किसी और कबीले में ब्याहने दूंगा और ना किसी इंसान का होने दूंगा। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। ऐसा कहना था कि अम्मी ने सोहनी को बालों की चोटी से पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में लटाकर उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी। सोहनी की हालत काबिल दीद थी। वो यूं तड़प रही थी जैसे उस पर किसी ने जहर वाला खंजर मार दिया हो। मुझसे अपनी प्यारी बहन की ये हालत देखी न जाती थी। अम्मी ने उसके रेशमी बालों को यूं पकड़ रखा था जैसे किसी घास फूस को पकड़ा हो। वो उस पर मुसलसल दम कर रही थी और मैं पानी का आधा जग सोहनी पर उंडेल चुकी थी। सारा बिस्तर गीला हो गया था और कमरे में जलने की अजीबो गरीब बदबू आ रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद अम्मी ने ये अमल मुकम्मल किया और सोहनी के बालों पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। सोहनी अपनी आंखें मूंदे बेड पर ढेर हो चुकी थी, जबकि मैं अम्मी के पास ही खड़ी थी। अम्मी बहुत परेशान दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मुझे पास बिठाया और मुझे बाहों में भर लिया। बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं। इस दुनिया में हमारे अलावा भी एक मखलूक रहती है जो मोहब्बत नफरत के अलावा दोस्ती या फिर दुश्मनी पर भी उतर आती है। बस बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। मुझे तुमसे पहले सोहनी की मंगनी करना होगी। अगर हमने ऐसा न किया तो सोहनी की जान भी जा सकती है। मैं अम्मी को हैरत से देख रही थी। अम्मी, अभी तो सोहनी की उम्र ही क्या है? क्या आप इसे इतनी सी उम्र में ब्याह देंगी? बेटा, ब्याहना नहीं है, बस इसका निकाह करना है, ताकि जिस मखलूक ने इसे मैदान जंग बना रखा है उसे ये सबक मिल जाए कि इंसान अशरफुल मखलूकात हैं और उनका मुकाबला आसान नहीं है। हम अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली उसकी पसंदीदा मखलूक हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैं, अम्मी और सोहनी उसी कमरे में सो गए। सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। सोहनी ने भी चुप का रोज़ा तोड़ दिया था। अम्मी ने लाड प्यार से उसे कायल करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने भतीजे मुनीर से उसकी मंगनी कर दी और मंगनी की तकरीब में ही उसका निकाह भी हो गया। तो अम्मी ने सुख का सांस लिया। निकाह वाले रोज सोहनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए।
شکر خدا کا کہ منگنی والے دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ امی باقاعدگی سے اسے دم درود کرتی رہیں، اور پھر 2 سال کے بعد میرا نکاح ہو جانے کے بعد ہم دونوں کی رخصتی ایک ساتھ ہی ہوئی۔ اب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، جبکہ سہنی 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر گیا۔ سہنی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پر کیا بیتی، مگر میں اس رات کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں رات کے وقت بارش ہو جائے تو مجھے وہ خوفناک رات یاد آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔